Let's take up whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number n or not. So first let's understand its meaning, what this question wants to say. See, 6 raised to power 1 is 6. 6 raised to power 2 is 36. 6 raised to power 3 is 216 and so on. So we know that we may take up any power of 6. The question asks you, will it end with the digit 0 for any natural number n? So the answer is no, but we have to show it how. So we say that 6 raised to power n can be factorized as 2 into 3 whole raised to power n. So it is of the form 2 raised to power n into 3 raised to power n. So if it has to end with 0, then it must contain 2 into 5. To end in 0 means it is divisible by 10. So it must contain 2 and 5 as prime factors. But it is not containing 5 as prime factor. So therefore 6 raised to power n cannot end in 0 because this prime factorization is unique. ऐसा भी नहीं है कि कोई और तरीका है इसे लिखने का, वो भी नहीं है. तो अब इस चीज़ सारी जो बातें मैंने आपसे की हैं इसको हम लिखेंगे कैसे, लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, लेट्स वॉच आउट. सो 6 raised to power n कैन बी फैक्टराइज लाइक दिस, 2 into 3 whole raised to power n. For 6 raised to power n to end in 0, it must contain 2 and 5 as factors. Alright, it must contain 2 and 5 as factors, but it does not contain prime. It does not contain prime number 5. It does not contain 5 as factor. Alright, also this factorization is unique. Is unique according to fundamental theorem of arithmetic. You have to mention this. It must carry half mark, you know, कि fundamental theorem के हिसाब से ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी यूनिक है. ऐसा भी नहीं है कि भाई आप ये बोलो कि इसमें तो नहीं है 5 एज प्राइम फैक्टर, हो सकता है कोई और तरीका हो फैक्टराइज करने का उसमें हो, ऐसा भी नहीं है. तो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एज पर फंडामेंटल थियरम ऑफ arithmetic, right? Therefore 6 raised to power n can not end with the digit 0. In fact मैं आपको एक नंबर थ्योरी से एक रूल बताऊं कि 6 की कोई भी पावर आप ले लीजिए, it will always end in 6. ये 6 में ही एंड करेगा हमेशा. You may take any power of 6. Okay? So this is all about this question. Now सपोज आपको एग्जाम में आ जाता है कि वेदर 8 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट, तो सेम आर्ग्यूमेंट लगाकर आप लिखेंगे कि बिकॉज अगेन इट डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर. अगर आपको आ जाता है 15 raised to power n कैन एंड विद 0 और नॉट, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 3 into 5 whole raised to power n, एंड अगेन यू विल गिव द आर्ग्यूमेंट दैट इट डज नॉट कंटेन 2 एज प्राइम फैक्टर. यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, अब इसमें 5 है बट 2 नहीं है, तो अकॉर्डिंगली यू विल गो ऑन चेंजिंग द स्टेटमेंट. आपको यहाँ पे कुछ भी आ जाए ऐसा जो 0 पे एंड नहीं हो रहा, यू कैन अकॉर्डिंगली चेंज द स्टेटमेंट. सो आई होप इट इज़ करेक्ट टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट यू हैव टू एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ फॉर दिस ये आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई दिस इज कॉम्पोजिट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड देन आई हैव अनदर वन. So for this you don't have to multiply this. You see, this is one term, this is second term. May I take 13 common? I am left with 7 into 11 into 1, or you may not even write 1, it's okay, plus 1. So you may not even multiply it, और ये थोड़ी छोटी मल्टीप्लिकेशन है तो आप 77 plus 1 आप कर भी सकते हैं और आप छोड़ भी सकते हैं. 13 into 78. So clearly it has more than 2 factors. क्यों? एक तो नंबर इटसेल्फ हो गया, एक 1 हो गया और 2 ये हो गए मिनिमम. अभी तो 78 कैन ऑल्सो भी फर्दर फैक्टराइज, बट हमें शो नहीं करना. हम यहीं पे आर्ग्यूमेंट दे देंगे क्लियरली इट कंटेन्स. ये थोड़ा थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको आर्ग्यूमेंट लगाना आना चाहिए, लैंग्वेज आना चाहिए. क्लियरली इट कंटेन्स मोर दैन 2 फैक्टर्स. More than 2 factors, as 1 and number itself are also factors.
अगर हम 78 को ना भी करें तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर्स हैं ही हैं, और 2 ये हमें नज़र ही आ रहे हैं. सो क्लियरली इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ composite number. Therefore, it is a composite number, right? So I hope you understand this one, and in the similar manner you will do the second part. अब इसको बहुत सारी बुक्स में पूरा सॉल्व करा हुआ है, you hardly need to solve it. ये तो बाई चांस चलिए NCERT ने ऐसे दे दिए जो फिर भी सॉल्वेबल हैं. हो सकता है आपको एग्जाम में इतने बड़े नंबर आ जाएं जो सॉल्व भी नहीं हो सकते हो, फिर आप क्या करेंगे? Now here you will take 5 common and I am left with 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. अभी आपको ये भी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. ये 1 मार्क में आ सकता है, 2 मार्क्स में आए तब भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसे परफॉर्म करने की. सिंपली यू विल गिव द सेम आर्ग्यूमेंट. क्लियरली इट कंटेन्स, यही वाली आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर दे देंगे. Clearly it contains more than 2 factors as 1 and number itself are also factors. 1 and number itself तो हैं ही ऑलरेडी, 5 भी एक फैक्टर हो गया, ये पूरा एक फैक्टर हो गया. सो क्लियरली इट इज़ कॉम्पोजिट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. लुक स्टूडेंट्स, सिर्फ लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी नहीं है. जब तक आपको प्रॉपर्ली किसी चीज़ का लॉजिक नहीं समझ में आएगा आप उसे फर्दर कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते. इस क्वेश्चन में आप क्रैम कर भी लेंगे हाँ कॉम्पोजिट है, या आप ये आर्ग्यूमेंट दो वी आर जस्ट गोइंग टू गेट MCQ दिस टाइम. ओके, यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर CBSE एग्जाम, यू आर नॉट, राइट? तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होने बहुत ज़रूरी है. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, योर जूनियर्स और सीनियर्स और वॉट एवर आपसे बड़े फ्रेंड्स हों आपके जो 10th में हो या छोटे फ्रेंड्स हों 10th में हो, उनके साथ शेयर कीजिए. सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. एंड इफ़ यू विल लाइक एंड कमेंट, इट विल रियली गिव मी मोटिवेशन. थैंक यू सो मच.